Okay, so we are going to start with the third sum. A toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. तो क्या बोला है? A toy is in the form of cone of radius, cone है, mounted on a hemisphere. It is mounted on a hemisphere with same radius and the total height of the toy is 15.5 centimeter. Okay. सो ये कौन है, किसके ऊपर माउंटेड है? एक हेमिस्फीयर के ऊपर. दिस इज माय हेमिस्फीयर. ओके, यू कैन सी दिस इज द हेमिस्फीयर. ओके, नाउ व्हाट इट इज सेड दैट टोटल हाइट इज 15.5 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर. सो इफ दिस इज 3.5 सेंटीमीटर दैट मीन्स दिस इज 3.5 सेंटीमीटर. सो ये रिमेनिंग पार्ट कितना होगा? 15.5 माइनस 12 दैट इज 15.5 minus 3.5 that is 12. Okay, so given is total height that is 15.5 centimeter and radius r is that is 3.5 centimeter. ठीक है, that is 3.5 centimeter. So to find, what we need to find is, we are supposed to find the total surface area of a toy. That is, I am writing TSA, but you have to write full total surface area of a toy. Okay, this is question mark. So we'll start to solve it. So we know that height of cone is equals to height of toy minus radius of hemisphere. Okay, so height of toy is nothing but, how much is height of toy? It is 15.5 centimeter minus 3.5. So what is 15.5 minus 3.5? That is 12.5 centimeters. This is the height of the toy. Next I need to find height of the cone. Okay, so ये पता चल गया मुझे. अभी मुझे क्या निकालना है? What I need to find is the total surface area of the toy. Total surface area of the toy के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? Curved surface area of cone. कर्व सर्फेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सर्फेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल दो तो मुझे टोटल सर्फेस एरिया मिल जाएगा. सो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वही करने वाला हूँ. सो कर्व सर्फेस एरिया ऑफ कोन. सो कर्व सर्फेस एरिया ऑफ कोन क्या था? हमने जस्ट लिखा था पहले. व्हाट वाज द कर्व सर्फेस एरिया ऑफ कोन? सो इट वाज पाई आर एल. ये वाला फॉर्मूला. तुम्हारा फॉर्मूला लिस्ट नहीं रहेगा तो तुमको क्या करना है? फॉर्मूला याद रखना है. सो कर्व सर्फेस एरिया ऑफ कोन इज नथिंग बट इट इज पाई आर एल. सो व्हाट इज पाई? इट इज 22/7. पाई को एज इट इज रखेंगे, नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी. आर इज हाउ मच? 3.5. बट नाउ द कंडीशन इज एल. एल हमारे पास है नहीं तो इसको एज इट इज रख देते हैं. व्हाट विल फर्स्ट डू इज विल फाइंड, इसको 1 करके रख देते हैं. नाउ विल फाइंड एल. सो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता था. ओके, नेक्स्ट एल कितना? एल क्या उतना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बरोबर. ओके, व्हाट इज आर? 3.5. व्हाट इज आर? 3.5. सो इट इज गोइंग टू बी 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. सो इट इज नथिंग बट 35 का क्या होता? 1225 होता. सो इट इज गोइंग टू बी 12.25 प्लस 144. सो इट इज गोइंग टू बी 156.25. नाउ 156.25 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 125. 156.25 is square root of 125. So it is going to be 112. So
इसका आंसर इज गोइंग टू बी 12.5 सेंटीमीटर. सो दिस इज द L. नाउ substitute L in equation 1. Therefore CSA of cone is how much? Pi into 3.5 into 12.5. Okay, so what is going to be the CSA? 3.5 into 12.5. हमें वो फाइंड आउट करना. So what we going to do is 125 into 35 करेंगे. Okay, 5 5s are 25, 5 2s are 10, 10 2s are 10 plus 2 12, 5 1s are 5 6. Okay, 125 into 3 कितना होता है? 475 या 375? It is 375. 5 7 13 4 4375. So it is going to be 43.75 pi. This is the curve surface area of cone. I'll write this as 2. Now I am supposed to find curve surface area of sphere. So what is curved surface area of sphere? It is nothing but 2 pi r square. Okay, it is nothing but 2 pi r square. So 2 pi r square, so 2 as it is, radius is 3.5 square into pi. What is 3.25? It was 3.5. 3.5 का square कितना था? We have just seen that 35 का square is 1225. So 2 into 12.25 into pi. 12.25 is nothing but 24.5 pi centimeter square. This is now total surface. Let's give it 3. Total surface area of what? Toy is how much? CSA of sphere plus CSA of hemisphere plus cone, that is 24.5 pi plus it was 43.75 pi. So we need to add these values. So 20, we'll solve it here. You can solve it by yourself also. 24.5 and 43.75. 5 12 8 6. So it is going to be 68.25 pi. So 68.25 into 22 upon 7. Okay, so what we are going to do over here is, now we'll divide this. So 7 1 7 1s are 7. Okay, 7 9s are 63, remaining 5. Okay, 7 7s are 49, remaining 3. 7 5s are 35. Okay, this is there. Now what we are going to do is, there is 2 points, so it is going to be 9.75 into 22. Okay, so how much it is going to be? So it is going to be around 22 5s is 110, carry 11, 22 7s are 154, carry plus 10 is 64, carry 16, 22 9s is 22 9 times is how much? So if you do this, you will get 22 9 times plus 16, whatever remaining, it is nothing but this here 5, sorry. So this is going to be 21450. So it is going to be 214.5. This is nothing but 214.5 centimeter square. So this is the total surface area of the sphere that is required over here. Got it?
cleared. Total surface area of the toy that was required, sorry. Okay, so the next sum for the exercise is the fourth sum. It is said that a cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest surface area, what is the greatest diameter of the hemisphere that can have, and find the area of solid, surface area of solid. Okay, तो तुम्हें क्या बोला गया है, तो तुम्हें सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करना है, एंड एक और चीज़ फाइंड आउट करना है कि एक कैसा है कि एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक आधा तुमने क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर रखा हुआ है. सो वो क्यूब के साथ एग्जैक्टली कितना ज़्यादा मैक्सिमम रेडियस होगा जो कि वो सरमाउंट हो सकता है उसके ऊपर. बड़ा भी नहीं होना चाहिए, छोटा भी नहीं चाहिए, एग्जैक्ट टू एज कितना ज़्यादा हो सकता है. सो इफ़ यू सी, सो हम एक टॉप व्यू बनाते हैं. लेट्स हैव अ टॉप व्यू ऑफ द स्क्वायर. अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा, इधर से देख रहा हूँ, सो द टॉप व्यू ऑफ द वट एवर द ऑब्जेक्ट इज लुक लाइक दिस स्क्वायर ऐसा होगा, और उसके ऊपर एक सर्कल होगा. तो सर्कल का मैक्सिमम लेंथ कितना हो सकता है, फिर मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा, जितना तुम्हारा ये एच टू एच पे जॉइंट होगा. सो इट इज गोइंग टू बी 7 रेडियस जो होगा उतना ही होगा. सो रेडियस कैन बी 7 and diameter radius can be 3.5 and diameter can be 7 only. So the maximum radius that can be surmounted on this square is, on this cube is ये hemisphere of radius 3.5 centimeter. Okay, so वो हम start करेंगे. So हमें वो find out करना था. So the greatest, this is fourth one, greatest diameter of hemisphere is nothing but will be equal to the side of block that is 7 centimeter. Therefore radius is equals to 7/2 सेंटीमीटर, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर. ओके, ये हो गया. नाउ अभी हमें क्या करना है, टोटल सॉलिड एरिया, सरफेस एरिया कितना है वो निकालना है. तो अभी क्या बोलोगे तुम, क्यूब का मैं क्या कर लूंगा, सरफेस एरिया निकाल दूंगा, और हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकाल दूंगा. तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल मिल जाएगा. बट नहीं, अगर सपोज मैं ये क्यूब है और मान लो ये क्यूब है जो कि है नहीं, और ये मेरा वो स्क्वायर है जिसको मुझे सरमाउंट करना है. सो इसको अगर मैं इस पे ऐसा रख देता हूँ, सो ये जो इतना रेक्टेंगल एरिया, वो रेक्टेंगल एरिया खा रहा है. सो मुझे वो एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो ये सर्कल के नीचे है, वो मतलब ये रेक्टेंगल के नीचे है, तो उतना एरिया मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो सेम चीज़ क्या करूँगा, ये जो सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट में सब्ट्रैक्ट करूँगा, क्योंकि ये वो स्क्वायर के ऊपर है और वो जगह दिखने वाली नहीं है. और ये टोटल सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब, तो मैं क्या करूँगा, टोटल सर्फेस, तो मुझे इतना पार्ट निकालना पड़ेगा जिस जो रिमेनिंग पार्ट है. सो व्हाट आई कैन डू इज, देयरफॉर अगर मुझे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज नथिंग बट, क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज नथिंग बट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ओके, हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर. करेक्ट, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज व्हाट, 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज व्हाट इज 2πr² minus area of base of hemisphere is πr². Correct? So 6a² 2πr² minus πr² is πr². Correct? Now 6 into 7² plus 22/7 into 7/2 का square. Correct? So 7 7 are 49, तो 6 into 49 plus 7 7 cancel, to 1 times 2 11 times. Okay, so this is 77/2.
2. So 9 6 is 50. 4 6 4 are 24. 24 plus 5 is 29. There's 294 plus 7 3 बचा 1 7 8 जाते, so this is 38.5. So 294 plus 38.5. So 294 plus 38.5 is nothing but 0.5. 8 plus 4 12 13 3. So it is nothing but 332.5 centimeters square. So this is the area of the surface area of solid. जो surface area of solid है वो यही रहने वाला है, that is 332.5 centimeter square. Got it? Now next sum, it is said that a hemispherical depression is cut from one face to of a cubical wooden block such that the diameter L of hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. हमें सिर्फ आगे क्या करना है, surface area. This is the exactly same sum जो हमने इसके पहले जस्ट किया, बट डिफरेंस क्या है, इसके जो पहले वाले सम में था वो जो ये हेमिस्फीयर था ये ऊपर लगाया हुआ था, इसमें क्या किया है वो नीचे लगाया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता. सम इज टोटली सेम, सब कुछ तुम्हें सेम ही करना है. ओके, खाली यहाँ पे क्या दिया है, नंबर्स नहीं दिया, खाली यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में हमें सॉल्व करना है. सो दी लेंथ ऑफ cube is L and the diameter of hemisphere is again L. Therefore radius क्या हो जाएगा, radius is nothing but L by 2. करेक्ट. अभी क्या पता है हमें यहाँ पे कि ये L है, ये L है, ये L है, सब L है. मुझे सेम चीज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड फाइंड आउट करना है. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. अभी यहाँ पे एक वर्ड बोला है, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो स्फीयर है, ये जो हेमिस्फीयर है, ये बाहर से खुला हुआ है, यहां से क्या हुआ है, ओपन है. ये स्फीयर यहां से क्या है, ओपन है, क्लोज्ड नहीं है. गेटिंग? दैट इज नॉट क्लोज्ड. इट इज जस्ट लाइक एक क्यूब लो और क्यूब के अंदर खड्डा खोद दिया है. सो दैट इज दिस डिप्रेशन. ठीक है. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, अगेन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये क्यूब का टोटल सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस क्या करोगे. अब ये ओपन पार्ट है ना, अब जब तुम टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालते हो तो ये क्लोज हो जाता, तुम ये ओपन वाला पार्ट भी फाइंड आउट कर लेते, बट वो हमें नहीं फाइंड आउट करना है. सो माइनस एरिया माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ओके. सो व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर. ओके, तो a का वैल्यू कितना है, l है, तो 6l स्क्वायर प्लस 2, ये πr स्क्वायर ही बचेगा. सो पाई की वैल्यू इज नथिंग बट एज इट इज रखेंगे हम r. व्हाट इज रेडियस, l by 2 स्क्वायर. सो इट इज 6l स्क्वायर प्लस pi l स्क्वायर by 4. सो व्हाट आई कैन डू इज I'll take मैं इसको क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 कर दूंगा. जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4, ताकि मैं क्या कर सकूँ, l स्क्वायर बाय 4 मैंने कॉमन लिया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, 24l प्लस 24l स्क्वायर ले लिया, तो 24 प्लस पाई रिमेनिंग होगा. सो दिस इज द फाइनल आंसर, l स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 24 प्लस पाई. नाउ इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. दिस लेंथ कैन बी एनीथिंग,
जिस लेंथ सब्सिट्यूट कर दो, सपोज 10 है, अगर इसके पहले वाला सम जो यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, ये वाला सम, तो हमने यहाँ पे ये रेडियस 7 लिया था, तो जस्ट यहाँ पे रेडियस का डाल दो, 7 डाल दो, तुम्हें सेम आंसर ही मिलेगा। अगर जस्ट तुम्हें क्रॉस चेक करना है, सो आई विल डू दिस फॉर यू ऑन माई कैलकुलेटर एंड आई विल शो यू। ओके, आई विल डू दिस ऑन माई कैलकुलेटर एंड आई विल शो यू। Okay, so you just see my calculator, that is L square की वैल्यू सपोज 7 थी लास्ट टाइम में, सो 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच 24 प्लस पाई की वैल्यू इज 3.14, सो वही आया राउंड फिगर वैल्यू, दैट इज 332.45। सिंस हमने 3.14 लिया, इसके लिए यहाँ पर स्लाइट डेसिमल में चेंजेस है, नहीं तो जो पीछे वैल्यू मिली थी हमें दैट इज 332.5, 46 इज नथिंग बट 0.5 ही, वही मिल गया। तो यू कैन सब्स्टिट्यूट एनी रैंडम वैल्यू। सो दिस इज द जनरल सोल्यूशन। गॉट इट? क्लियर?